subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. ऐसे कहते हैं ना कि एक गंदी मछली आप एक तालाब में सारी मछलियों को सारे पानी को गंदा कर देती। मैं अगर सच्चाई बताने आया तो फिर इट्स गोना गेट अ लिटिल मेसी ऑल्सो। इंस्टाग्राम का ABCD सिखाने वाला इंसान मैं था। सीनियर एक्टर और जूनियर एक्टर मैंने हर किसी का, मैं कह सकता हूँ, हाथ पकड़ पकड़ के पोस्ट करवाया है। और हर किसी का मतलब हर किसी का। I crossed a number on Instagram. I was the first person to cross 1 million in the entire cast. ये चीज़ बहुत easily नहीं गई हमारे सेट पर। कई सारी चीज़ों को ये चीज़ बहुत offensive लगी कि we've been working since so many years and he is celebrating 1 million at the age of 24. अनुपमा में मेरी ग्रोथ पिछले 1 साल से रुक गई है। Honestly अगर कहा जाए तो मेरे सीन्स भी कम किए गए थे उस टाइम पे, and that was not directly by the makers. I would just give it a hint. और ये चीज़ के बारे में मुझे ओपनली कहीं ना कहीं से पता चला था। यही हुआ है, जो ज़्यादा अनप्रोफेशनल था, जो ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है सेट पर और जो ज़्यादा सबको परेशान कर रहा है, जिससे पूरा सेट ऑनेस्टली परेशान है, वो आज भी खुश है। और जो इंसान सबसे इतना क्लोज था, जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया, जो हमेशा प्रोफेशनलिज्म दिखाता रहा, वो शो के बाहर है। आई यूज्ड टू क्राई ऑन कॉल विथ माई मॉम एंड आई यूज्ड टू टेल हर एवरीथिंग एंड शी यूज्ड टू क्राई हियर. Big Boss is also, a show that I've been watching since childhood. Season 13 was one of my favorites. मैं डांस का हमेशा से थोड़ा दीवाना रहा हूँ, क्योंकि when you think of Bollywood, when you think of being an actor, डांस साथ साथ आ ही जाता है। Paras Kalnawat, who has recently been in the news for being terminated from popular show Anupama, revealed some explosive details to us about the entire incident, being a part of the show and rumors of his rift with Rupali Ganguly. Watch the video to know it all. सबसे पहले तो the recent fallout has been very unfortunate and your fans have been really heartbroken. Right. What was your initial reaction upon hearing the news? Actually, I honestly didn't know about this, and I didn't know that something like this is going to happen, because I share a very, very great bond with the makers of the show and the production team, the direction team, the entire cast, the entire crew, including the spot dada to the lightmen to the camera department, everyone. And I love them and they love me back. And वो प्यार इतना था कि when I used to go to the set after 2-3 days, तो वो लोग आके स्पेशली अच्छे से मिलते थे कि अरे 2-3 दिन नहीं आए, वी मिस्ड यू एंड ऑल दैट। और अचानक से एक ऐसी न्यूज़ सुनना कि मेकर ने ऐसा कुछ डिसाइड किया है जो मुझे भी नहीं पता था, जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया था और जिसके बारे में मुझसे कोई मीटिंग भी नहीं की गई थी। और जबकि आप एक ऐसे मेकर से जब आपका इतना अटैचमेंट हो जाता है दैट यू स्टार्ट calling that person that you are like my dad, and I share that bond with Rajan sir, because after I lost my dad, I told him that I don't have any guidance right now with me, and I think you are my guide. And he used to tell me that my guardian angel, my dad, is around me and he's guiding me through. Someone who used to speak so good about me and someone who was so fond of me, all of a sudden, he got against me, I would say, because he gave a statement which actually puts me down and which actually makes me look in a negative light, in a bad light. But ये सारी चीज़ों की मैं अगर सच्चाई बताने आया तो फिर it's gonna get a little messy also. So I don't speak completely open about it, but then I am honestly hurt about this thing that राजन सर, जिन्हें मैं इतना ज़्यादा मानता हूँ, उन्हें कुछ ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसके बारे में उन्होंने मुझसे एक बार अच्छे से बात भी नहीं की, मुझसे वो मिले तक नहीं। Right. Yeah. Just like all of us, did you too also hear the news through social media? Or through mail? ये एक ऐसा मोमेंट था कि मुझे प्रोडक्शन से एक मैसेज आया दैट वी हैव सेंट यू अ टर्मिनेशन लेटर ऑन योर मेल। और जैसे ही मेल आया उसके तुरंत बाद जब मैंने इंस्टाग्राम खोला तो मुझे सबसे पहले एक न्यूज़ ऊपर पॉप आउट हुई विच सेज दैट कि पारस कलनावत टर्मिनेटेड फ्रॉम अनुपमा। एंड उसका फिर मैंने जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ा तो उसके बाद मुझे पता चला कि राजन सर ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि आई वॉज अनप्रोफेशनल, आई डिड नॉट इन्फॉर्म हिम बिफोर साइनिंग सम अनदर चैनल, अनदर शो, एंड ही वुड हैव वर्कड इट आउट अगर मैं पहले बताता इस बारे में। जबकि द सेम प्रोडक्शन टीम टोल्ड मी दैट अगर मैं उनको पहले बताता या फिर मतलब उनसे पहले से बात कर रहा होता तो मुझे बिल्कुल अलाउ भी नहीं करते, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव चैनल। मैंने इसके बारे में एग्जैक्टली साइन करने से पहले इन्फॉर्म किया था उन्हें,
आर्टिकल पहले आ गए थे, साइनिंग मेरी बाद में हुई है। और दिस इज वेल, माय मैनेजर्स एंड एवरीवन वेल अवेयर अबाउट इट कि ये पहले न्यूज़ में आ गया और मेरे मेरे पेपर्स मेरे हाथ में कुछ दिन बाद आए। तो उस न्यूज़ को देखकर उन्होंने मुझसे एक बार अच्छे से डिस्कस भी नहीं किया। उन्होंने बस मुझे इतना पूछा कि आर यू डूइंग द शो, एंड आई सेड कि यस सर, आई एम डूइंग दिस शो and I'm keen to do this show because this is something where I think it's a big opportunity for me and where I will grow, क्योंकि अनुपमा में मेरी ग्रोथ पिछले 1 साल से रुक गई है। and yeah, so this is it. Right. Paras, you spoke about feeling left out on the sets of the show. Like you've been recently अभी एक interview में आपने कहा. Right. What exactly made you feel like this? There are several reasons actually, and honestly एक मोमेंट हुआ था मेरे साथ ऐसा, जब यू नो आई वाज इन द लाइमलाइट ऑफ द शो, जब इट वाज ऑल अबाउट मदर एंड सन रिलेशनशिप। तब कई सारी ऐसी चीज़ें हुई थी कि लोगों का प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया था दैट आई क्रॉस्ड अ नंबर ऑन इंस्टाग्राम। आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस 1 million इन द एंटायर कास्ट। और ये चीज़ बहुत इजीली नहीं गई सेट वहाँ पर, हमारे सेट पर कई सारी चीज़ों को ये चीज़ बहुत मतलब ऑफेंसिव लगी कि वी हैव बीन वर्किंग सिंस सो मेनी इयर्स एंड ही इज़ सेलिब्रेटिंग 1 million एट द एज ऑफ 24। सो ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत अलग तरीके से हर्ट की थी। और उसके बाद एक अलग ही तरह का पॉलिटिक्स हुआ था मेरे साथ, विच आई वोंट बी एबल टू say openly about in front of a camera as of now at least, because I don't want to speak bad about anyone or negative about anyone, because हर किसी की अपनी लाइफ होती है, हर किसी का अपना तरीका होता है। शायद उनका तरीका गलत होगा बट उनके नज़रिए में शायद वो कहीं ना कहीं सही होंगे। सो आई डोंट माइंड इट अदरवाइज। बट ऐसी कई सारी चीज़ें हुई थी जहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं नीचा दिखाया गया था। और ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो मेरे सीन्स भी कम किए गए थे उस टाइम पे, एंड दैट वाज नॉट डायरेक्टली बाय द मेकर्स, आई वुड जस्ट गिव इट अ हिंट। और ये चीज़ के बारे में मुझे ओपनली कहीं ना कहीं से पता चला था, बट स्टिल आई डिडंट रिएक्ट टू इट। आई वाज स्टिल पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई एज आई से दैट आई एम फॉन्ड ऑफ माई प्रोड्यूसर एंड आई एम फॉन्ड ऑफ द एंटायर टीम। सो जिस तरीके का मेरा बॉन्ड था उन सब के साथ, मुझे लगा था कि जो भी हो रहा है दे विल बी विथ मी एंड दे विल ऑलवेज have their hands on my head. Right. Yeah. पर कहीं ना कहीं do you think कि ये जो टिप है या ये जो जैसे कि आपने कहा कि you know when you crossed 1 million, of course, Right. do you think कि एक generation gap वाली भी जो चीज़ है that also results into tips or something on a show like this? Right now at the current situation it is all a race. मतलब एक रेस बन गई है। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, जो नंबर्स है, जो लाइक्स है, उसकी रेस होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सब सेट पे होता है या फिर ये अभी अभी शुरू हुआ है आफ्टर द रील्स गॉट इंट्रोड्यूस टू इंस्टाग्राम, क्योंकि उससे पहले तो मैंने जितने शोज़ किए जब रील्स नहीं थे तो बहुत ही हेल्दी कंपटीशन देखा मैंने। इनफैक्ट अगर मैं खुद की बात करूँ तो आई एम दैट पर्सन विच एवरी एक्टर वुड अग्री टू। हर एक इंसान हमारे साइट पर, वेदर दैट सीनियर टू मी और जूनियर टू मी, इंस्टाग्राम का ABCD सिखाने वाला इंसान मैं था हर किसी को, बिकॉज आई वॉज वेरी वेल अवेयर अबाउट इट कि वॉट हैशटैग्स नीड्स टू बी यूज्ड, व्हाट इज द परफेक्ट टाइमिंग ऑफ पोस्टिंग एंड व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्टिंग। सो हर एक इंसान का, वेदर दैट्स अ सीनियर एक्टर और अ जूनियर एक्टर, मैंने हर किसी का, मैं कह सकता हूँ, हाथ पकड़ पकड़ के पोस्ट करवाया है। और हर किसी का मतलब हर किसी का, एवरी सिंगल पर्सन ऑन सेट, एंड दे स्टिल थैंक मी फॉर दैट। बट वो ही सेम इंसान लोगों ने, मतलब जो भी थे, उन्होंने मुझसे ही कंपटीशन करना फिर बेहतर समझा और कहीं ना कहीं मुझे फिर नीचा दिखाना शुरू भी कर दिया और कई सारी ऐसी बातें भी कही जो बहुत डिमीनिंग थी। बट जस्ट बिकॉज दे आर सीनियर टू मी एंड जस्ट बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई सीनियर्स, आई डिड लेट इट गो। Right. Talking about the whole incident, did Rajan sir speak to you about this decision, and did you confront him after whatever happened? I did not get a chance to confront him after the decision taken by him, but I did inform the production team that I would love to meet him at least after a week or so, jab he's also calmed down maybe, because I don't know what he has in his head, because आप किसी इंसान को 2 साल इतना प्यार करते हो, उसे अपनी फैमिली बुलाते हो, and all of a sudden
अगर मेरे कोई फैमिली पर्सन, मेरा कोई, आप जिसे अपनी फैमिली मानते हो, राजन सर तो खुद बोलते हैं कि पूरी टीम को अपनी फैमिली मानते हैं, तो क्या अगर मेरा भाई या फिर मेरी बहन कुछ ऐसा कर दे जो मुझे बुरा लगे, तो मैं क्या उन्हें मतलब अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दूंगा? ऐसा नहीं होता है. सो जो चीज़ उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन की, जस्ट बाय वन डिसीजन दैट आई हैव टेकन, उन्होंने सीधे इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया, मुझे एक टर्मिनेशन लेटर हाथ में दे दिया, दूसरी तरफ कास्टिंग भी हो गई, एंड ये सारी चीज़ें 4-5 दिन के अंदर ही हो गई. मेरे साइनिंग के 4 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई. सो इट्स समथिंग विच हैज़ शॉक्ड मी एज वेल, एंड कहीं ना कहीं मैं भी हर्ट हूँ, बट हर्ट हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजन सर से कॉन्टैक्ट पूरी तरीके से तोड़ दूंगा. I would definitely want to meet him, and I would definitely want to sort it up from my end as well कि ऐसा क्या हो गया. You said you were unhappy with your track in the show. Right. आपकी screen space जो reduce हुई, क्या ये भी आपकी unhappiness का एक वजह है? Yes. ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ जहाँ पर मुझे बताया गया था कि आपका ट्रैक शुरू होने वाला है. एक ऐसा पॉइंट भी था जब मेरी 2-3 दिन बाद दुबई की फ़्लाइट थी. मैंने डेट्स दे रखे थे और मुझे बोला गया था, कैन यू प्लीज़ कैंसिल योर दुबई फ़्लाइट, और कैन यू प्लीज़ कैंसिल द प्रोजेक्ट यू आर डूइंग इन दुबई, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग योर ट्रैक. और मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने बोला कि ट्रैक शुरू कर रहे हैं तो मेरे लिए ट्रैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने महीनों से मेरा ट्रैक आया नहीं है. सो मैं भूल जाता हूँ वो दुबई का प्रोजेक्ट, आई जस्ट कैंसिल इट. तो मैंने लड़ झगड़ के वो दुबई वाला प्रोजेक्ट कैंसिल करवा दिया. मैंने बोला कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू इट, बिकॉज मेरे लिए मेरा शो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अनुपमा शो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा शूट हुआ, और उसके बाद वो ट्रैक कभी आया ही नहीं. वो शूट सिर्फ 1 दिन का था, और उस 1 दिन में जितने सीन्स रैप कर सकते थे उन्होंने रैप किए. उसके बाद 4-5 दिन की तो छुट्टी थी मुझे, और उसके बाद जब मैं शूट पर गया भी तो 18-20 पेजेस के सीन आते थे, और उस सीन में मेरे एक भी डायलॉग्स नहीं होते थे. मैं बस पीछे खड़ा रहता था. और मैंने बार बार ये कंप्लेंट की क्रिएटिव टीम से और प्रोडक्शन टीम से कि आई नीड टू परफॉर्म, आई नीड टू ग्रो माई सेल्फ, मुझे बेटर होने का चांस तो मिले, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रो एक्टर. मैं ऐसा नहीं हूँ कि आई वुड कंपेयर माई सेल्फ विद द लेजेंड्स शाहरुख खान एंड ऑल द लेजेंड्स लाइक सलमान खान. सो मुझे ग्रो करना है अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं मुझे सीखना है. तो सीखने के लिए डायलॉग्स तो होने चाहिए, सीन्स तो होने चाहिए. सो वो ग्रोथ मेरी बिल्कुल रुक गई थी शो में. Right. You know, this isn't the first instance with DKP Paras. Right. Earlier also something similar has happened, and Right. कई बार हुआ है. कई बार हुआ. रोहन मेरा के साथ भी Yes. similar चीज हुई है. उन्होंने बैन किया है DKP से, Right. स्टार से भी. राइट. क्या थॉट्स है आपके on this? मुझे ये चीज़ जब मुझे बीइंग पार्ट ऑफ दिस थिंग, बिफोर बीइंग पार्ट ऑफ दिस थिंग, जब मैंने ये सारी चीज़ें सुनी थी, तो मुझे लगता था कि जो सामने वाला इंसान कह रहा है शायद यही सच है. ये शायद सामने वाले, जब एक्टर के बारे में मुझे बताया गया है सामने से, प्रोडक्शन टीम से, जो मैं सुन रहा हूँ कि शायद ये इतने अनप्रोफेशनल थे इसलिए इनको निकाल दिया गया है. बट आफ्टर बीइंग विक्टिम ऑफ द सेम थिंग, अब मुझे समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं शायद हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि उन एक्टर्स की कोई गलती ही ना हो. उन एक्टर्स ने सिर्फ अपनी एक आवाज़ रखी होगी जहाँ पर वो सच हो, मतलब सही होंगे या फिर सच्चाई कह रहे होंगे. तो उस आवाज़ को दबाने के लिए शायद उन्हें इस तरीके से निकाल दिया कि उनके साथ वापस से प्रोडक्शन टीम ने कभी काम ही नहीं किया. Paras, like we all know, Rajan sir is a very big producer. Yeah. And of course he has very good contacts. Definitely. Do you think this step will affect your acting career? It will definitely affect my acting career. It's definitely gonna affect my growth as well somewhere. But looking at the positive side, I believe Jhalak Dikhlaja will do wonders for me, and I expect that. I मतलब keep my fingers crossed, because ये चीज़ ने मुझे कहीं ना कहीं ऐसे अफेक्ट किया है कि मेरा मॉरल थोड़ा डाउन हुआ था while listening to this fact कि राजन सर ने ऐसा कुछ किया है. एंड आई नो दैट राजन सर के बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी है. ही इज़ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स कम्युनिटी, एंड उनके आसपास जितने प्रोड्यूसर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक एक्टर को अफेक्ट करता है जब सामने वाला इंसान इस तरीके का स्टेटमेंट देता है, एंड दे कॉल द अदर पर्सन अनप्रोफेशनल. अब अगर ये चीज़ ना हुई होती और मुझे किसी और शो के लिए कंसिडर किया जाता और वो प्रोड्यूसर अगर मेरे प्रोडक्शन टीम को कॉल करता, तो उनको हमेशा एक ही चीज़ सुनने मिलती कि वी हैव नेवर सीन मोर प्रोफेशनल एक्टर देन पारस, बिकॉज दैट्स बीन टोल्ड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कास्ट, एंटायर क्रू, बाय द सेम प्रोडक्शन एंड द सेम प्रोड्यूसर. बट अचानक से अब ये चीज़ हो गई है तो मुझ पर कई सारे सवाल उठेंगे ज़रूर. Right. On your Instagram, Paras, you stated that Anupama was a nightmare to you, and people close to you know why. Right.
what did that hit towards? There were many things that happened to me, and there were many things I was going through mentally because of several things which happened to me on set, and I discussed it with creatives, definitely, with the co-actors I loved and with the co-actors who were close to me. मैंने कहीं ना कहीं ये हिंट प्रोडक्शन टीम को भी दी थी कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई है, और पास्ट में जो हुई थी मेरे साथ वो तो सबको पता ही था, बट वो कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा अच्छा बन के रहते हो किसी के साथ, आपको उसका उतना ही बुरा फल मिलता है। ये रिसेंटली मैंने अपने एक प्रोडक्शन टीम के साथ किसी के साथ ना ये डिस्कस भी किया था कि हमेशा ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आई एम लिटिल बिट, अभी रिसेंटली मैं स्पिरिचुअल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। मैं कई सारे वीडियोस देखता हूँ स्पिरिचुअलिज्म में, जो ये सब चीज़ें आपको इंडिकेट करते हैं अबाउट मेंटल पीस एंड ऑल। तो उसमें मैंने अभी रिसेंटली अपने एक प्रोडक्शन टीम के एक हेड से पूछा था कि जिन लोगों ने सेट पर गलत किया है इतना ज़्यादा, वो इतने खुश रहते हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है, और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया वो सफ़र क्यों करते हैं। सो उन्होंने जवाब में यही कहा था कि कर्मा है, किसी ना किसी दिन उनको भी वो कर्मा का जवाब मिलेगा। तो अब मैं वो चीज़ पे ज़्यादा कमेंट भी कर नहीं सकता हूँ कि कौन ये एग्जैक्टली मैं किसकी तरफ हिंट कर रहा हूँ या क्या है, बट यही हुआ है, जो ज़्यादा अनप्रोफेशनल था, जो ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर रहा है सेट पर, और जो ज़्यादा सबको परेशान कर रहा है, जिससे पूरा सेट ऑनेस्टली परेशान है, वो आज भी खुश है। और जो इंसान सबसे इतना क्लोज था, जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया, जो हमेशा प्रोफेशनलिज्म दिखाता रहा, वो शो के बाहर है। Right. पर आपके कास्ट से सिर्फ सुधांशु has come out in support of you. Right. उन्होंने कोट दिया है. Right. However, you shared a great bond with other actors also. Right. Does it feel bad कि आपकी support में कोई आपकी co-stars तक नहीं है? यही होता है जब आप एक इतने बड़े प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे हो, और हर किसी को डर होता है। कहीं ना कहीं मुझे भी वो डर था कि मैं कुछ कहूँगा तो शायद मुझे शो से निकाल दिया जाएगा। कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में मैं अब वोकल होना चाहता था इन माय पास्ट, बट इसी डर से मैं कहीं ना कहीं चुप रहा कि राजन सर मुझसे इतने क्लोज हैं, वो इतने बड़े प्रोड्यूसर है, तो शायद मेरे अगेंस्ट चीज़ें ना चली जाए। सो यही सारे जो थॉट्स होते हैं, ये सारे एक्टर्स के माइंड में होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग गलत है, कहीं ना कहीं वो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, और अपने बारे में सोचना गलत बिल्कुल नहीं है। सो जस्ट टू बी इन द प्रोड्यूसर्स एंड द मेकर्स गुड बुक्स, दे डिड नॉट कम अहेड एंड सपोर्ट मी। जबकि मैं तो यही चीज़ मानता हूँ कि अपने पेरेंट्स को छोड़कर कोई अपना नहीं होता, तो मैं ये चीज़ हमेशा पकड़ के चलता हूँ। मैं फैमिलीज़ और बॉन्ड्स बनाता हूँ। मेरे जो दोस्त लोग हैं वो हमेशा ज़िंदगी भर मेरे दोस्त रहेंगे, लेकिन वो बहुत सिलेक्टिव लोग हैं, और मुझे पता है कि कौन ज़िंदगी भर साथ देंगे। तो एक कास्ट में से सिर्फ 2 ही 3 ऐसे लोग हैं जो मैं कहूँगा कि मेरे साथ खड़े थे पहले भी मेरे प्रॉब्लम्स में, और आज उनके कॉल्स या मैसेजेस नहीं आए, बट डेफिनेटली आगे ज़रूर आएंगे। Right. अनिका के एग्जिट के बाद पारस, I think if you agree, things started going downhill for you, right? Like you mentioned कि अनिका का भी एग्जिट काफी अब्रप्ट रहा, Right. and उन्होंने भी उनका नोट था लास्ट, उसमें उन्होंने लिखा she has also spoken about politics on set. Definitely. Has this happened with you on your previous shows also, या ये सिर्फ क्योंकि जितनी भी बार हमने सुना है ये अनुपमा के बारे में, अनुपमा has been in the news for this political aspect. What do you say about कुछ ऐसे कहते हैं ना कि एक गंदी मछली आप एक तालाब में सारी मछलियों को, सारे पानी को गंदा कर देती है। सो अगर वो एक इंसान अगर आपके मतलब कंपनी में गलत हो, या फिर आपके आसपास गलत हो, तो पूरा एनवायरनमेंट गंदा हो जाता है। मेरे प्रीवियस शोज़ में आई हैव बीन सो लकी दैट आई हैव मेट पीपल एंड आई हैव शॉट विद पीपल जो फैमिली बन गए हैं, जो आज भी टच में हैं, जिनके साथ हम लोग आज भी मिलने का प्लान करते हैं। द बेस्ट टीम आई हैव एवर वर्कड विद वाज दिल ही तो है, दैट वाज बालाजी टेलीफिल्म्स, एंड दैट वाज फॉर ऑल बालाजी, एंड देयर आई मेट करण भाई, करण कुंद्रा एंड ऑल ऑफ देम। सो वो लोग एक फैमिली बन गए सिंस देन, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी ने किसी के अगेंस्ट कभी कुछ किया हो या कभी बोला भी हो। हम में से आज तक किसी को किसी से प्रॉब्लम ही नहीं रही। वो टीम ऐसी है, मतलब हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे, हम लोग मिलते हैं, नहीं भी मिलते हैं तो भी बॉन्ड वैसा का वैसा है, बॉन्ड को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द शो। राइट। और ये जो गंदी मछली के बारे में आपने बात की,
है कौन exactly, and you know we've also heard rumors about your rifts with Rupali. So क्या है ये इशारा उनकी तरफ? अब नहीं, नॉट एग्जैक्टली ये इशारा उनकी तरफ नहीं है या फिर ऐसे कोई स्पेसिफिक की तरफ नहीं है, एंड आई वुड जस्ट नॉट कमेंट ऑन दिस थिंग बिकॉज मैं इस बात पे अभी भी शांति रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात जितनी खुलेगी उतनी मैसी होगी, और it was just a heavy thing for me and my family at the same time because क्योंकि वो टाइम पर मैंने अपने डैड को खो दिया था, और उस टाइम पे मैं अकेला कहीं पर शूट कर रहा था. वी वर शूटिंग इन सिलवासा. आई यूज्ड टू लिव अलोन एंड माय मॉम यूज्ड टू लिव अलोन हियर, क्योंकि मेरे मॉम के साथ भी यहाँ कोई नहीं रहता था. आई यूज्ड टू क्राई ऑन कॉल विथ माय मॉम एंड आई यूज्ड टू टेल हर एवरीथिंग एंड शी यूज्ड टू क्राई हियर. And even after all this thing, no one took any action against the people, who did all these things to me and my family, and said very, very bad and mean things to my family as well. Right. Okay, talking about Jhalak Dikhla Ja, Paras, tell us about Jhalak and how excited are you for the show? I'm very, very, very excited about it, and it's something which is happening to me for the first time. I'm entering a reality show and I'm doing something which I was always fond of, and that's dancing. Reality show में dancing in front of the audience and in front of the judges and आपके जितने भी contestants हैं, वो आपके जो colleagues हैं, उनके सामने dance करना is something which is very, very interesting and challenging as well. So ये एक इस तरीके का challenge होने वाला है मेरी life में, जहाँ पर मुझे कुछ नया सीखने भी मिलेगा, हर किसी से सीखने मिलेगा, मेरे कलीग से, मेरे को एक्टर्स, मेरे कंटेस्टेंट से, और जजेस से, और जो एंकर रहेंगे उनसे भी. तो कहीं ना कहीं मेरा जो लर्निंग प्रोसेस है वो यहाँ पर वापस से शुरू होने वाला है, तो मैं उस चीज़ के लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ. Right. Are you fond of dancing, and what preps are you doing for the show? So I've started rehearsing by myself as well right now, and I want to be the best. I want to give my 100%. उसके बाद रिजल्ट जो होता है वो तो डिपेंड करता है. So मैं बचपन से ही डांस का दीवाना रहा हूँ, एंड जब आप एक्टर बनने के बारे में सोचते हैं तो उसके साथ साथ डांस आ ही जाता है. तो मेरी डांसिंग की जो लर्निंग प्रोसेस है ये तो सबसे पहले मुंबई आके ही शुरू हुई थी फ्रॉम टेरेंस लुइस एकेडमी. वहाँ पर मैंने कुछ बेसिक्स सीखे थे, 3 महीने का कोर्स था, डिप्लोमा कोर्स था. तो वहाँ पर मैंने वो डिप्लोमा कोर्स ख़त्म किया. उसके बाद जितने शोज़ किए उसमें जब भी कुछ डांस परफॉर्मेंसेज आते थे तो कोरियोग्राफर्स आके सिखाते थे. तो धीरे धीरे वो डांसिंग में भी वो एक स्किल थोड़ी बहुत अपग्रेड हुई है, बट वो अपग्रेडेशन अब तक इतना नहीं पहुँचा है दैट आई वुड कॉल माई सेल्फ अ प्रो डांसर. सो वहाँ मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना अच्छा और कितना बेहतरीन परफॉर्म कर सकता हूँ ऑन स्टेज. Paras, do you think this entire fallout will affect your Jhalak journey by any chance? I don't think so, because लोग ये देखते हैं कि आप किस तरीके के परफॉर्मर हैं, आप किस तरीके के इंसान हैं. वो आपका, मुझे नहीं लगता कि वो ये देखेंगे कि कौन एक थर्ड पर्सन आपके बारे में क्या राय रखता है या आपके बारे में क्या थॉट्स रखता है. They would definitely judge me by the way I am. They would definitely judge me by my professionalism. And मुझे लगता है, और मेरे बाकी जितने लोगों ने मेरे साथ अब तक काम किया है उन सबको लगता है that I have been a professional actor. And ये चीज़ मेरी मेरी सच्चाई मेरी मदद करेगी, और ये मेरी जो सच्चाई और मेरी अच्छाई है जो लोग जानते हैं, जो मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे को एक्टर्स इससे पहले के शोज़ के और प्रेजेंट शो के भी जो को एक्टर्स हैं वो भी जानते हैं कि हाउ प्रोफेशनल आई हैव बीन. सो ये सारी चीज़ें जो है ये मेरे साथ आगे भी जाएगी, और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करने वाली है. Paras, जैसे आपने कहा कि ये आपका फर्स्ट रियलिटी शो है. Right. And of course, now that you're being a part of the Colors family, is it Right. going to open horizons for other reality shows as well, especially Big Boss? What do you think? Definitely, if I get an opportunity to be part of Big Boss, I'm definitely gonna give it a thought, because Big Boss is also a show that I've been watching since childhood. And I've been going through all. मुझे जितना याद है मैंने सारी seasons देखे हुए हैं. And season 13 was one of my favorites, I would say. Okay. So if I get a chance to be part of the reality show, I'll definitely give it a thought. Right. Paras, talking about the entire incident once again, as an actor, do you think कि जब ऐसा कोई incident होता है when you're a part of such a popular show, Right.
and you somewhere because चाहे आप वो शो की चकाचौंध हो या चाहे आप कहो कि वो प्रोड्यूसर इतने बड़े हैं उसके वजह से somewhere do you think as an actor is it scary for you that you do not even have the rights to choose what do you think is right for you because वो एक freedom कहीं ना कहीं जब आप इतनी बड़ी पार्ट शो का हिस्सा होते हो तो कहीं ना कहीं freedom जो है वो आप उनके हाथों में दे देते हो कि ये you know मेरा नहीं है ये आई थिंक ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ्रीडम की बात है ये सारे मेकर्स पे डिपेंड करता है. नॉट ऑल द मेकर्स आर द सेम. Rajan sir has been supporting. I would not say that he is completely an unsupportive producer and someone who would not even support the actors. मैंने इससे पहले कुछ म्यूज़िक एल्बम्स किए, उस पर मुझे कोई रोक टोक नहीं लगाई गई थी बिकॉज इट वॉज नॉट फ्रॉम एनी चैनल आई वुड से. तो मुझे उस चीज़ पे कभी उन्होंने रोका टोका नहीं. बट डेफिनेटली आपकी फ्रीडम सामने वाले के हाथ में होती है. आपको परमिशन लेना पड़ता है, आपको पूछना पड़ता है और आप अपने लिए फ़ैसला नहीं ले पाते हो. अब मैंने कहीं ना कहीं अपने लिए फ़ैसला लिया तो नतीजा आप लोग के सामने है. एंड यही है, अगर आप अपने ग्रोथ के बारे में सोचते हो और आप अपने बारे में जहाँ पर सोचने लगे वहाँ पर चीज़ें गलत जाने लगती है. राइट. और यू जितना हम लोगों ने इतने सालों से देखा है यू ऑलवेज बीन वेरी अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज एंड ऑल ऑफ दैट एंड यू नो आप कभी ये नेम गेम ये सारी चीज़ें नहीं करते. रिसेंटली भी बीच में जब उर्फी ने भी चीज़ें आप पर कमेंट की थी, आपने कभी इन सारी चीज़ों पर कुछ कमेंट नहीं किया, कभी कुछ रिटेलिएट नहीं किया? व्हाट डू यू कुछ कहना चाहिए आप? बिकॉज कुछ रिटेलिएट करने के लिए कुछ होना भी चाहिए. मतलब देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अग्रेशन और सम काइंड ऑफ मतलब आप किसी से इतने परेशान तो नहीं हो कि आप उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ें इंटरव्यू में बोलोगे. एंड मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के लिए कभी हार्ड फीलिंग्स कैरी कर पाता हूँ इन माई लाइफ. मैं बहुत ओपन और बहुत ज़्यादा क्लियर इंसान हूँ. एंड मैं लोगों के सामने जब भी रहता हूँ मैं बस वही हूँ जो मैं एक्चुअल में रियलिटी में हूँ. तो मैं अपने जो अपने सीक्रेट्स छुपा कर नहीं रखता हूँ. सो मेरे लिए अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ पर्सनली जाकर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है. सो मैंने ना कभी ये सीखा है कि मैं किसी के लिए नेगेटिव चीज़ें बोलूँ, ना कभी मैं उसके अगेंस्ट नेगेटिव चीज़ें करता हूँ. बट जब आप ये सब देखते हैं कि आपके बारे में कहा जा रहा है तो वाओ, आई टेक इट वेरी वेरी कामली. मुझे तो लगता है कि चलो ठीक है, उनको अगर ये बोलकर खुशी मिलती है तो ठीक है, उनकी खुशी में खुशी ढूंढ लेंगे. तो ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती क्योंकि जो मेरे अपने लोग हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं. तो अगर कोई थर्ड पर्सन मेरे बारे में कुछ भी बोलता है सो थर्ड से शायद दुनिया वाले जानेंगे, लेकिन जो दुनिया वाले जब मुझसे मिलेंगे तो डेफिनेटली बोलेंगे अरे जो तीसरे इंसान ने कहा वो गलत ही कह रहा था इसके बारे में. लास्टली पारस, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने सभी फैंस को जिन्होंने अनुपमा में तो ऑफकोर्स इतना प्यार दिया आपको, एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए क्या मैसेज? पहले तो सबको दिल से बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू क्योंकि ये जब मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है शो में एक हिस्सा बनने की और एक एक वो बेटा बनने की जो आप हर कोई अपने बेटे में ढूंढता है. तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, मेरा सपोर्ट किया हर बार और आज भी कर रहे हैं. मुझे इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कॉल्स आए अभी पिछले 2 दिनों में that you don't need to worry because you are a good human being, you are a good actor, you don't need to think about anything right now. And I'm just very happy कि ये प्यार, ये सपोर्ट मुझे स्टार्टिंग से मिलता आ रहा है. मैं बस चाहता हूँ कि अब मेरे आगे की जर्नी में भी ये प्यार और ये सपोर्ट मेरे साथ रहे. एंड इन रिटर्न आई विल बी गिविंग यू गुड परफॉर्मेंसेस क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है और इतना ज़्यादा प्यार मैं भी आपको देता रहूँगा. थैंक यू सो मच. Thank you. It was lovely talking. Same here. Hi, this is Paras Kalnawat and you're watching me on India Forums. Well, if you like this video, do not forget to subscribe to our channel.